वेलकम टू पॉड टॉक शो। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो पेशे से डॉक्टर है, लेकिन ही इज़ लाइक अ आर्टिस्ट। वो आपको खूबसूरत बनाते हैं, वो आपके बॉडी को स्कल्प्ट करते हैं। ही इज़ लाइक अ पर्सन जिसे इंसानों को खूबसूरत बनाना पसंद है। सो वेलकम डॉक्टर गुरसिमरत। Thank you, thank you. It is my I pleasure. believe your journey in understanding human body and making it beautiful is going to be fun today. Of course. So let's get started. There is a thing called plastic surgery, Yeah. then there is cosmetic surgery, Yeah. then there is reconstruction surgery, Right. and there is also aesthetic surgery. Aesthetic So, surgery. what is the difference? So everything comes under plastic surgery. Plastic surgery के ही हमने उसको divide कर दिया है. Plastic means to mold. So mold anything. So we mold the body parts into something that they are not present, or they are present but we want to beautify into it. So that is called as reconstruction. अगर किसी का trauma हुआ, किसी की हड्डी टूटी हुई है, या उसके ऊपर skin नहीं है, so we take some part from other part of the body and then we replace it with over that. That is reconstruction, right? If we remove it hydrogenically, मतलब किसी का कैंसर हुआ तो उसको हमने वो निकालना पड़ा कैंसरस पार्ट, तो उसको रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, जैसे जबड़े का है तो हम उसको निकालते हैं कैंसरस पार्ट, तो उसको हम अपने लेग का जो फिबुला का पार्ट है तो उसको हम उसको करके रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो वही प्रिंसिपल हम वही चीज़ को हम एस्थेटिक में अप्लाई कर सकते हैं कि छोटे से पार्ट को रीफर्बिश करके उसको अच्छा बना के ब्यूटीफाई करके उसी चीज़ पे ऐसा मिनिमली इन्वेजिव कर दे कि वो पता ही ना लगे कि हाँ भी यहाँ पे था, कि वो एक्चुअल में कैसा था और अभी कैसा हो गया है. So that depends upon the need. So that is a basic difference between reconstruction and. So you are more like an artist. You Exactly, play with the human artist. body. Exactly, artist with a mechanical skill. वो बोलते हैं ना कि मैकेनिक जो Well है, kept, well kept. मैकेनिक जो है वो इंजन बंद करके काम करता है, हम इंजन चालू कर देंगे साथ काम करते हुए. द आर्टिस्ट्री. Of course, it's like sculpting a whole body. Yeah. So aesthetic is all about sculpting a body. body contouring. Yeah. Okay. So when we talk about aesthetics, what are the sort of surgeries that come across you, and what are the most common that you find nowadays? So most commonly done surgeries are the tummy tuck surgeries, because जिसमें the person का जो fat है, जो excess हो जाता है, that comes around the belly, so that is called as a cellulite. Even after so much of dieting, so much of gym, they are not able to remove that. Is it like liposuction sort of? Yeah, liposuction along with the removal of an excess fat along with the skin. So if we do the tummy tuck has 3 components, right? So उसमें एक skin redraping है, the fat removal है, और liposuction है. Liposuction because वो हम ऐसे areas में हम जहाँ reach नहीं कर सकते, तो वहाँ पे 3 मिलीमीटर का कैनुला हम डालते हैं, 3 मिलीमीटर, तो उतने से ही वो हम फैट रिमूव कर देते हैं. और बाकी जो एक्सेस फैट जो बेली के नीचे है, दैट आर हिडन अंडरनीथ योर अंडरगारमेंट्स, तो वो हम निकाल देते हैं. So the tummy becomes flat, and then the six pack that they have their own persistent six pack abs, they are visible along over the skin. Okay, which one is next? The next ones are the breast reduction surgeries. They are most functional part of the female who are housewives or not that working, and then they have a inherent nature of increased fat around their breasts. So they tend to hang it more. So that is the second most common surgeries. The next one is the breast augmentation surgeries. We do for the self improvement and the self image. So we do breast implant surgeries. Gives a good cleavage, gives a good mount, gives a good personality to the person immediately. So that is the most common we do surgeries. So in city like Ahmedabad, breast augmentation is happening that commonly? Yes. So we are doing 1 to 3 surgeries in a week in Ahmedabad. So these are the most commonly done, because Ahmedabad now has become a hub for the medical tourism. We have the best of the best doctors. They are having good abilities. They are more precise. So we have learned all the things from abroad. We are did our fellowships from so many places around the world, and we have a good volume. The people used to go to Mumbai or Delhi or abroad. So now they have got सब कुछ अहमदाबाद में ही है. So then
all the good doctors are there, the experience is there, so they are opting for the major surgeries in Ahmedabad, even the breast augmentations. So as much as I understood, majority of your clients are female. Is that the same? No, 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 no. Of course not. The female के जो breast है तो फीमेल में ही है, right? तो अगर मेल है तो उसमें gynecomastia है, the same thing. The fat can be on the either of the persons, irrespective of the gender. तो अगर मेल में है तो वो gynecomastia बोलता है. So they are people वो थोड़े shy होते हैं. They don't come often, but still equal number of surgeries we are doing in a male surgery for gynecomastia. But वो अभी अर्बन लोगों में थोड़ा ज़्यादा प्रेवलेंट है. इन रूरल एरियाज दे आर वेरी शाय, दे डोंट कम ऑफन ऑन अ पब्लिक स्पीकिंग, और दे डोंट इंटरेक्ट मच इन देयर ओन होम ऑल्सो, बिकॉज कि हाँ भी उनको लगता है कि हाँ भी कि ब्रेस्ट ज़्यादा बड़े हैं तो दे आर नॉट एबल टू टॉक, दे डोंट हैव अ गुड पर्सनैलिटी, दैट इज़ वाई, और दे वो एक डिलेमा जैसा रहता है उनको. But once they are educated, this reaches them कि हाँ भी नहीं, this can also be cured or this can be taken care of. They come often. Understood. So there is also a myth or reality that you would have to clarify कि things like tummy tuck are not very sustainable. ये तो अभी करवाया है, वापस बढ़ जाएगा, हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बीमारियां और होने लग जाएगी. So what's your take on that? So ये जो सारे aesthetic procedures हैं, so they tackle to your present scenario. अब अगर हमने फैट निकाली है, आज आपकी जितनी फैट है वो निकाल दी, अगर आप कल से फिर वापस बिंज ईटिंग चालू कर देते हो, यू स्टार्ट accumulating more of फैट, तो वो तो वापस आने वाली है. ऐसा कुछ नहीं है कि हम फ्यूचर में बैठ के उसको कुछ नहीं कर सकते. अनप्रडिक्टेबल है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. आज मैं आपको ब्यूटिफाई कर सकते हैं एस्थेटिकली, यू वुड बी मच बेटर देन बिफोर, बट फ्यूचर में आप बोलोगे कि मैं जाके पानी पूरी और पिज़्ज़ा और वो सब चालू कर दूंगा, तो देन यू कम टू स्क्वायर वन. सो दैट इज़ द दैट एवरीथिंग इज इन योर हैंड टू गेट इट डन एंड देन यू हैव टू मेंटेन इट. सो इसीलिए हम वो बोलते हैं कि जो अच्छा कैंडिडेट है उसको चूज़ करना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्जरी. जो पहले से ही डेडिकेटेड है कि हाँ भाई, मैंने पहले ही लाइन बोली कि उसी को करते हैं जो पहले जिम से नहीं कर पाता है, जो डाइटिंग से नहीं कर पाता है. सो इन दैट सिनेरियो वी कैन हेल्प द कैंडिडेट. अदरवाइज जो ऐसे ही आता है कि हाँ भी मेरा फैट कम कर दो, आई जस्ट वांट टू हैव ईटिंग, एंड देन कोई डिसऑर्डर के साथ नहीं होना चाहिए. So there are certain invasive and minimally invasive surgery types जो आजकल हम देख रहे हैं. What's your take on understanding this? लोगों को लगता है कई बार कि ये बहुत पेनफुल होता होगा, and then they also have a perception कि ये सब चीज़ें नहीं करवानी चाहिए. सो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्लास्टिक सर्जरी है ना, 90% ऑफ देम आर डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया. सो एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया का जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जहाँ कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी निकल जाते हैं. मिनिमली इन्वेजिव तो प्लास्टिक सर्जरी इज़ ऑलरेडी अ मिनिमल इन्वेजिव, उसमें भी हम उसको लेस इन्वेजिव कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ हम जैसे टमी टक करते हैं या लाइपोसक्शन करते हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि इट इज़ डन बाय 5 मिलीमीटर. 5 मिलीमीटर इज़ हाफ ऑफ अ सेंटीमीटर. इतने में ही हम उसको फैट निकाल देते हैं. सो वी हैव गॉट सो मच गैजेट्स, द लेजर्स, द वेजर्स, ऑल दीज थिंग्स. किसी की स्किन को अगर वी वांट टू स्ट्रेच इट, सो वी गिव अ 2 मिलीमीटर इंसिजन इन द फोरहेड एंड देन वी रिट्रैक्ट द मसल्स एंड वी डू एवरीथिंग विद दैट मिनिमल इन्वेजिव. को उसको तीसरे दिन भी पता नहीं लगता कि हाँ भी कुछ कट था कि नहीं था, किसी तीसरे बंदे को भी नहीं पता लगेगा, बट दैट स्किन इज एब्सोल्युटली रिजुविनेटेड विद दैट. तो इसलिए हम इस दौर पे पहुंच चुके हैं कि हाँ भी हर एक चीज़ मिनिमल इन्वेजिव है, उसमें भी हम उसमें छोटा छोटा कर रहे हैं. तो प्लास्टिक सर्जरी इज एवरीथिंग अबाउट कंसीलमेंट, कि हम पता ना लगना चाहिए कि हाँ भी कुछ किया है, फिर भी एवरीबडी हैज़ बिकम यंग. सो एट द एंड ऑफ द डे वो सब खेल तो वही है कि हाँ भी आपको अच्छा दिखना है, यंग दिखना है. दे वांट टू हैव अ यूथफुलनेस इनटू इट. अब वो पता है मूवीज में बताते थे कि प्लास्टिक सर्जरी से पूरा चेहरा बदल जाता है. एग्जैक्टली. डज दैट रियली हैपन? चेहरा बदलता नहीं है, योर यूनिट चेंजेस बेसिकली. वो देर आर ओनली 9 फेशियल ट्रांसप्लांट्स हैपेंड इन द वर्ल्ड. सो इट इज़ नॉट अबाउट कि चेहरा बदल जाता है.
इट इज़ जैसे आपका नाक बहुत तीखा है, सो योर फेशियल प्रोफाइल इज़ लाइक दैट कि हाँ भी आपके तीखे नाक के कारण यू आर डिफाइंड बाय योर नोज, और यू हैव अ मोल ऑन योर नोज, और योर मोल ऑन योर फेस, और अ मुस्टैच दैट आर नॉट कमिंग, और देयर इज अ पैच, और यू हैव अ चबी चीक. सो वी चेंज द प्रोफाइल ऑफ इट. वी चेंज द प्रोफाइल ऑफ द नोज. जो तीखा है उसको स्ट्रेटन कर देते हैं, वट एवर दे वॉन्ट. जिसके कान जो है एकदम आगे मुड़े हुए हैं उसको स्ट्रेटन अप कर देते हैं, सो बिकम व्हाट द पर्सन वांट्स. लिप्स हैं बहुत ब्रॉड हैं, जब पतले हो जाते हैं, सो ऑटोमेटिकली वो प्रोफाइल जो होता है ना उसकी चेंज हो जाती है. देन दे से कि हाँ भाई अच्छा, हाँ तूने फेस चेंज करवाया, जो कुछ ऐसा कुछ किया. सो वो एक एस्थेटिकली ब्यूटीफाई हो जाता है, एस्थेटिकली अच्छा लगता है. सो दैट इज़ अ फेशियल रीअरेंजमेंट ऑफ इट. तो वो अच्छा दिखता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फेस फेस चेंज कर दिया है. एंड अबाउट दिस बोटॉक्स एंड फिलर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन लोगों ने एस्थेटिक सर्जरीज करवाई एंड नाउ दे डोंट लुक एज अपीलिंग एज दे यूज्ड टू बी. सो व्हेन सच पीपल कम टू यू, do you have any process to understand that after this surgery would they look better? Yeah, because we have seen lots of celebrities for whom the surgeries have gone wrong way. It has gone sideways and it looks very weird on their face. Right, So right. how do you operate on that scale? The thing is कि non-surgical facial rejuvenation like Botox and fillers are what they give you a volume expansion, right? So Botox give you the volume sustainability. So वो चीज़ें ऐसी हैं, they are not long lasting, they are for 6 months. Like I used to get some actresses in particular drama कि आज मेरे को एक facial expression ऐसा देना है जिसके लिए मेरे को एक फ्राउनिंग फेस चाहिए, या मेरे को एक क्राइंग फेस चाहिए. सो वी गिव अकॉर्डिंग टू दैट. वो बोटॉक्स ऐसी जगह पे देते हैं तो वो उसका फेस वैसा हो जाता है. वो बट दे नो कि हाँ भाई ये 1 महीने 1.5 महीने तक रहने वाला है, उसके बाद दैट विल वेयर ऑफ. सेम विद द फिलर्स, वो जितने दिन चाहिए तो देन दे कैन वेयर ऑफ. सो बट द थिंग इज कि जो बंदे हैं वो दे गेट ओवरबोर्ड विद इट कि हाँ भी वो इतनी परफेक्शन में जाना चाहते हैं. सो दे चेंज द डॉक्टर्स एंड दे unethically want to have to look something that they are not. So we are not gods into perspective. So we are just the people who can harness the science and applicable to the human body. तो इतना करते हैं. जो भी overboard जाता है तो then they end up in different So technically the problem in that cases is with patient, not with the doctor. Yeah, of course. That is the patient psyche, the mentality of the patient, that they want to look better and better and better. But the age process inevitably gets into you. So you have to accept it at certain level. So there should be a realistic expectation for that. A plastic surgery also, this is the amount of that your skin can handle. Beyond that, it is not possible. Also, what do you think about the post-operative care? So usually like normal surgeries need very intensive care. So how does it work with plastic surgery? Absolutely. I think post-operative care is very much important, right? But as I said कि हम majority of the cases local anesthesia में करते हैं, तो उससे वो anesthesia, जनरल anesthesia का भी complication कम हो जाता है, उसके side effects, उसके drug effects वो कम हो जाते हैं. And उसके साथ ही जो we take care of the person pre-operative also, operative also and post-operative also. तो उसके लिए इट बिकम्स वेरी ईजी. एक सेट पैटर्न है, एक SOP है कि हाँ भाई ये आएगा, इससे पहले ये करना है. पेशेंट का मेंटालिटी देख लेने का, उसके रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देख लेने के, और उसके बाद कि हाँ भाई ये ऐसे करेंगे एंड दैट शुड बी डाइजेस्टेबल टू हिम कि हाँ ऐसा लगूंगा मैं बाद में. सो वी हैव गॉट सॉफ्टवेयर ऑल्सो कि हाँ भाई ऐसा दिखा सकते हैं कि ऐसा करने के पे ऐसा दिखोगे. सो आर यू हैप्पी विद इट? इफ नॉट देन वो दूसरा एस्पेक्ट है कि हाँ भाई ऐसा करेंगे. तो उससे वो इतना इजी हो जाता है कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर तो पेशेंट को पहले ही कि हाँ भी पेन इतना होने वाला है, तो ही नोज कि हाँ भी इतना पेन होगा एंड आई हैव टू लिव विद इट. Is there a lifestyle shift that happens? So usually जैसे लोग समझते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर मीन्स कि आजीवन फिर ये एक चीज़ मेरे जीवन में मुझे चेंज कर देनी पड़ेगी, या माई लाइफ वुड चेंज और थिंग्स वुड चेंज, आई नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस फॉर द होल लाइफ. डज इट वर्क दैट वे? एब्सोल्युटली. कुछ शिफ्ट कुछ नहीं करना है. वी आर रीअलाइनिंग व्हाटएवर इज देयर. जो आप पहले फ्रूट्स खाते थे, जो वट एवर यू आर ट्राइंग टू ईट, वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ,
so that you have to incur into your lifestyle also, so that should be your routine into your life. तो वो पोस्ट ऑपरेटिव भी, पोस्ट ऑपरेटिव में कुछ ज़्यादा, इट इज़ मोस्टली फॉर 5 to 10 days, ठीक है। और वो सिर्फ ध्यान वही रखना है कि हाँ भाई आप जो सूचर्स लिए हैं उसको परमानेंट इफेक्ट के लिए जस्ट let your body heal for itself and then it will be there with you for lifetime. तो वो आपको ध्यान रखना है, then it continues with you. So lifestyle changes कोई modification नहीं है, but it has to be कि हाँ भी वो जो पहले ध्यान रख रहे थे उसी को continue आपको करना है. Great. So let's move to the other body part, that's hair. So हम देख रहे हैं जितनी तेजी से obesity बढ़ रही है, stress बढ़ रहा है, people are losing hair like anything. Either there is a hair loss, hair thinning, scalp visibility, ये सारी चीज़ें आ रही है. So what's your take on hair transplant? Right. So I think the major asset of a person in a facial profile is their hair. So that अगर कोई बंदा टकला है तो देन उसको ये बोलते कि रे अंकल बोलते हैं उसको, कोई वेरी even with a white grey beard and hair, so they say कि हाँ ये तो भैया है, because they have hair. So I think that has come as a synonymous with the personality, the hair. So I think the hair transplant is a very broad terminology. So there are so many categorized into the adjuvant methods for hair regrowth and restoration. So if you are losing hair, if you are hair fall is there, or if you don't have hair, if you are genetically losing it, so we have different methods for it. So it is not the end result is hair transplant. So inevitably it can end into hair transplant, but there are so many methodologies, though so many holistic approaches towards the hair growth and hair restoration. Why do you think hair fall is happening so much nowadays? As you've told, the stress and obesity, all these factors come into account. We are into that generation where we want to work, we want to earn money, and we are just striving for something that we are so passionate about it. So we don't take care of the hair or our body. So when we realize it कि हाँ नहीं अभी तो ये क्या हो गया मेरे साथ all of a sudden. So but it is the years and years of neglect towards the hair. So that is why, or what I say is आजकल है ना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत हो गई है. The hair को इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए because we are the blood supply is not reaching there adequately. हम उसको अपने आप को नर्चर नहीं कर पा रहे हैं, इतनी सारी डेफिशिएंसी विटामिन्स की हैं. सो अगर वही करेक्ट कर रहे हैं ना तो आधा तो प्रॉब्लम हेयर फॉल का भी सॉल्व हो जाएगा. करेक्ट. या बट so what happen when somebody comes with a hair problem? So either they're having a hair fall or scalp visibility from either of the side या फिर thinning हो रहा है. So do you directly approach with a hair transplant or is there any specific SOP कि पहले सीधा hair transplant किया जाता है? नहीं, एक्चुअली हम है ना हर किसी पेशेंट को स्क्रीन करते हैं एज ए इंडिविजुअल, उसको देखा जाता है. जैसे अभी एक पेशेंट आया जिसके सिर्फ स्काल्प के दोनों साइड में हेयर नहीं थे बट ही हैड अ गुड ग्रोथ. सो व्हाट वी फाउंड इज कि हाँ भी वो अपने स्टाइल के लिए ऐसे दोनों हाथ फेरता रहता था. सो दे गॉट इंटेंगल्ड इनटू देयर द बिग नेल्स. सो दैट इज वन पार्ट. तो उसको सिर्फ नेल क्लिप करने के लिए बोला एंड देन कि हाँ भी उसको मॉइस्चराइज रखो और अच्छे से उसको जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जहाँ मॉइस्चराइज़र है, जहाँ बाल वो कम धो रहे हैं, डेंड्रफ है, उसको क्योर कर लेंगे. दैट सफाइज्ड. अब जो है कि हमें जिसकी हेल्थ रिसीडिंग है, जिसको पहले से ही केचेक्सिया है, जहाँ ही हैज़ गॉट सम एलिमेंट्स, डायबिटीज़ है, जहाँ कोई ऐसा हाई ब्लड प्रेशर है, ही इज़ अंडर स्ट्रेस इनटू समथिंग, तो उसमें पहले से ही वो इतनी दवाई ले रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई है. सो वो हेयर फॉल हो रहा है उसको, बट वी कैनॉट only do a hair transplant in them. So we have to prime him for certain nutritional supplements. We have to prime him for the PRP or some adjuvant therapies so that it increases the blood supply, it increases the potentiality of hair growth on the scalp. So वो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा, और after some time even if they are not working then we go for a hair transplant. Getting under a knife is very easy.
बट बिफोर दैट वी शुड ट्राई एवरीथिंग कि हमें ये हो जाए. हर किसी इंडिविजुअल के लिए एक डिफरेंट अप्रोच है, तो वो करके देन वी द इनएविटेबल सोल्यूशन इज हेयर ट्रांसप्लांट. Can you explain me what essentially happens during hair transplant? Exactly होता क्या है? हेयर ट्रांसप्लांट में दी हेयर की ग्रोथ में देर आर फिजियोलॉजिकली 3 स्टेजेस हैं, राइट, मोटा मोटी. कि पहले इमेच्योर स्टेज है जो बच्चों में है, ठीक है. दूसरा मैच्योर है जो अपने पास रहती है फ्रॉम 18 to 56, और एक है जो परमानेंट है, जो कान के पीछे नीचे हैं, जो नीचे वाले हैं दो या परमानेंट हेयर, तो वो कभी जाते नहीं, वो आपके साथ रहेंगे टिल योर लाइफ लॉन्ग. तो एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ से एक हेयर फॉलिकल लिया विद द फॉलिकल विद द बल्ब और उसको आगे ट्रांसप्लांट किया. तो ये प्रोसेस है, इट टेक्स अराउंड 10 to 12 आवर्स. पहले हेयर को ले लिया जाता है पीछे से, उसको सेव किया जाता है, उसको प्रिजर्व किया जाता है, राइट, आइस में उसको ठंडा रखा जाता है. देन उसके बाद नेक्स्ट सिटिंग में उसके जो हेयर जहाँ पे चाहिए, देन वी ट्रांसप्लांट देम सिंगल हेयर 1 by 1. तो ये प्रोसेस जो है डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया. आप फुल्ली अवेक हो और यू कैन टॉक, यू कैन सी, यू कैन डू योर वर्क ऑल्सो, बिकॉज सिर्फ आपका हेड एंगेज्ड है एंड एवरीथिंग यू कैन डू एंड यू आर अवेक. तो वो एक सर्जन के लिए एक हैसल है कि वो काम लगा हुआ है, बट यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर और आप अपना काम कर रहे हो. इफ़ यू वांट टू हैव अ मूवी, यू कैन वॉच मूवी, लिसन टू द म्यूजिक, वट एवर यू वांट टू डू. सो यू आर वर्किंग एज वेल एज गेटिंग दैट procedure done. But then there is a lot of buzz nowadays on Google and places like that where people are saying that it's not permanent, it has higher failure rate. People are also searching stuff like does it cause cancer, does it cause brain damage, हम सर के साथ ये चीज़ कर रहे हैं, is it safe, this is the reason why people are having dementia nowadays. So what's your since you are from a medical field too, you are a doctor too, you understand the anatomy well, Right. so what's your answer to all these questions? As I said, the choosing of the right candidate for a hair transplant is very important. So if you already have a blood pressure, high blood pressure, or diabetes, so you have to be very cautious about it, that if you would be able to do or you would be able to get that hair transplant done or not. So that is a domain of a doctor who is getting it done. It is not just about कि हाँ बाल नहीं है तो उसमें हेयर ट्रांसप्लांट कर दो. सो दीज ऑल मिथ्स के यहाँ भी कैंसर हो जाता है, जहाँ ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, जहाँ परमानेंट नहीं है, हेयर फॉल है, ऑल दीज आर रिलेटेबल टू सर्टेन थिंग्स कि हाँ भी वो उसके साथ एडजमेंट थी और उसमें वो गलत तरीके से किया गया, जहाँ उसको मैनिपुलेट करके पिक्चर पेश करी गई ऐसा. सो स्क्रीनिंग ऑफ द पेशेंट बिफोर हैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा कैंडिडेट हेयर ट्रांसप्लांट के लिए है. I believe ये तो फिर हर एक सर्जरी के अंदर it is a risk because if you are giving thinner to somebody or somebody is on thinner on a regular time, उसके बाद फिर जब आप सर्जरी करते हो then again there are certain repercussions you have to take care of. Diabetic patient है तो कुछ दवाइयों में, so I believe that comes from all the surgeries, not just hair plan. Exactly. So इसीलिए मेरी अप्रोच ऐसी रहती है कि हाँ भी पेशेंट को पहले बिठा के उसको पूछें कि हाँ भी तेरे को चाहिए क्या. अगर वो हमारे दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है कि हाँ भी मेरे को ऐसा चाहिए एंड आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी एंड आई वांट टू गेट इट डन, वो हर एक सर्जरी के लिए लागू होता है, नॉट ओनली फॉर हेयर ट्रांसप्लांट. अगर कोई किसी को एस्थेटिक सर्जरी दूसरी करवानी है तो भी वी हैव टू रीच अ कॉमन कंसेंसस कि हाँ भी ये मैं दे सकता हूँ और ये आप एक्सेप्ट कर सकते हो. That I believe तो फिर जो लोग नॉर्मल जगह पर जाकर हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, जहाँ पर एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट कर रहा है हु इज़ नॉट इवन अ डॉक्टर, हु डज नॉट अंडरस्टैंड द मेडिकल कंडीशन इन जनरल, I believe then that is very risky. Then it is a wise choice कि अगर करवाना ही है then go to a qualified doctor who has been a surgeon. True, very true. That is a valid point. But I think वो हमारे जैसे डॉक्टर्स की एजुकेशन से ही उनको पता लगेगा कि हाँ भी नहीं कहाँ पे जाना है और कहाँ पे नहीं जाना है. तो पहले से ही बोलते थे ना, कोई भी कोर्ट वाला बंदा हो ना तो उसके साथ दोस्ती रखने की कि कहाँ पे जाना है, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, कि हाँ भी हु इज़ द बेस्ट इन दैट फील्ड, कि हाँ भी वो जो कर रहा है. तो उसके लिए जैसे मेरे पास जो भी आता है तो आई टेल हिम होल हार्टेडली कि ऐसा है,
आपको करवाना चाहिए कि नहीं, और नॉट ओनली फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, कोई भी चीज़ के लिए कि हाँ भी ये बंदा किसके लिए अच्छा है, ये किसके लिए अच्छा है। सो वो एक जो कॉमन बंदे को है कि हाँ भी मेरे को ऐसा करना है, तो वो आना चाहिए उसको। अब दादी लोग बोलते थे पहले कि सर में तेल नहीं डालते ना, इसलिए ये सब होता है। सो इज दैट ट्रू? एवरीथिंग इज वैलिड, राइट। आई कैनॉट डिनाई दैट कि हाँ भाई तेल नहीं लगाने से होता है, तो तेल लगाने से, मैं खुद हर किसी पेशेंट को बोलता हूँ कि हमें जो तेल ही नहीं लगाता तो वो उसका नरिशमेंट नहीं है। तेल है सो मच नरिशमेंट इनटू इट। जो ज़्यादा लगाता है वो और ज़्यादा मत लगाए, जो कम लगाता है वो लगाए। दैट इज ओनली थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। Correct. So, in a way, ancient wisdom is also true in some things. Everything that all these science has come from I think the medieval times. Shushruta se hi bana hai, is being the father of our surgery. So surgery, plastic surgery being a part that came out from the surgery. So all these have been significantly came up from the Shushruta. Great. So now we would be moving to rapid fire round, Oh, okay. where you would be getting around 30 seconds to answer each question. Oh, okay. I'll try. So the first one is, which type of surgery gives you more sense of accomplishment, aesthetic or reconstructive? Reconstructive, of course. Best age to get a Botox? When you get a license for a four-wheeler. Great. How do you determine ideal nose shape for a patient? What makes you happy when you see yourself in your mirror? Go for a cosmetic surgery if If it makes you happy and gives you self confidence and a boost. your definition of a successful surgery. When you are able to relate to the public, right, and whenever you are easy with yourself when dealing with any public relationships. On a personal front, your hobbies. I love running, right, so I love interacting with people also. Two things. Day in Dr. Gursimrat's life. Busy. And I want to remain that way. That's great. Thanks a lot for your time. I believe the world from a doctor's lens, that's what our viewers have got today. It was informative, it was fun, but alongside there were lots of myths that we busted together. So thank you so much for being with us. It was And I would request all the viewers of this podcast, if you want us to bring more such people to you, if you want us कि हम और ऐसी बातें आप तक ला पाए, do follow us, subscribe our channel and share as much as possible.